Do join our Telegram group at Vedantu_biotonic. This is our Telegram group and you've got to join it just so that you can stay in touch with our super amazing channel and you can find out all the super awesome things which happen. Daily question assignments. अच्छा कितने बच्चों ने बहुत motivational quotes पढ़े? I've started to send some really amazing motivational quotes. Have you been reading them? Right? And getting motivated and studying. Right? But बच्चों अगर आप क्लास 11th में हो बिल्कुल मत भूलिएगा कि अगर आप क्लास 11th में हो दिस इज द टाइम कि आप पूरा क्लास 11th रिवाइज कर सकते हो इन द लास्ट फ्यू डेज सो दैट यू रियली कैन डू वेल इन द एग्जाम. Right, you have the best learning app for you on Vedantu live classes, English Hindi batches. In the class you solve your doubts, learn completely, my dear children. जो topic हो गया उसका micro course ले लीजिए so that you don't miss out on anything. Right, per day price is just this much. Just look at this number of hours. आप 4 hours पढ़ रहे हो, 1 hour coming down to just ₹20. Don't miss this opportunity, guys. चले जाइए vdnt.in/ytpro. Use the code VDPRO. So let's come to plant tissues. Tissues are made up of a group of similar cells that are adapted for a particular function. Yes, जब एक जैसे cells, this is the important word. And this is an important word. Then they are called as tissues, plant tissues. Now these cells can be a parenchymatous cells. Parenchymatous cells का function होता है photosynthesis. Collenchyma का function होता है strength देना, but the strength is of a living mechanical tissue. Sclerenchyma का काम होता है strength देना, but the strength is of a dead mechanical tissue. Because sclerenchyma के अंदर scleroids होते हैं, stone cells होते हैं, so it's a dead mechanical tissue. Is that clear? Do you see the roots here and the water going up, the stem which is a conducting agent, the leaves and the flowers? So everything has a function. In detail in today's class I am going to be doing all the functions. Xylem vessels का function है, phloem का function है, companion cells का function है. They are nothing but group of similar structure and function cells. जब एक जैसे similar structure and function cells get together we call them tissues. Good morning everybody. चलिए, oh very good chart, इससे सब क्लियर हो जाएगा. So आ जाइए. Plant tissues. Plant tissues can be of two types, meristematic and permanent. Meristematic वो होते हैं which can form any type, लिखिए इसको, of cell. किसी भी टाइप का सेल फॉर्म कर सकते हैं. And these are the ones which are going to keep on dividing. Apical, shoot apical meristem, root apical meristem, lateral like this on the sides, right? And this can be intercalary. Intercalary क्या होता है? जहां पे ये नए पत्ते निकल रहे हैं ना, नई ब्रांच निकल रही है, यहां पे nodes, internodes पे. Is that clear? Intercalary. Any doubts? मेंटी क्विज है ना परमिंदर? मेंटी क्विज ये करने के बाद है क्योंकि मेंटी इसी के ऊपर है, इसी के ऊपर मेंटी है. आज ही पढ़ाऊंगी, आज ही मेंटी करेंगे. मेंटी का चैप्टर ऐसे डिसाइड होता है कि जो मैंने आज कराया उसका कल मेंटी होगा, क्योंकि कल तो मैंने कुछ कराया नहीं और सेल डिवीजन का मेंटी खत्म हो गया. कल तो हमने कुछ पढ़ाई नहीं करी, इसीलिए जो आज मैं करा रही हूं उसका मेंटी अभी हाफ एन आवर के बाद होगा. डन? तो इसीलिए अभी ध्यान से सुनो ताकि मेंटी में अच्छा कर सको. मेंटी आफ्टर हाफ एन आवर. चलो, मेंटी पे सेंटी है मेरे बच्चे. परमानेंट, सिंपल. Parenchyma, which is green in color, does photosynthesis. Collenchyma, which is the living mechanical tissue. मेंटी पे सेंटी बच्चों आ जाओ. असली मेंटी टर्न 3 मई को होने वाला है. डन डना डन. आइए, असली मेंटी 3 मई को होने वाला है. Sclerenchyma, which is a dead mechanical tissue made up of fibers or sclerids which are referred to as stone cells. Complex. Now complex are the ones which are made up of more than one type of cells. Write it down.
tissues which are made up of more than one type of cells, meristematic, or they can ask you permanent, or they can ask you dead tissues, ऐसे कुछ भी ऑप्शन में हो सकता है. Is that clear? Xylem में होते हैं tracheids. Tracheids are found in gymnosperms. जिम्नोस्पर्म्स इकोलॉजी का चैप्टर में मैं आपको कराऊंगी. लास्ट टू लास्ट ईयर का नीट क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स अंडरगोइंग एक्सटिंक्शन. कोई बता सकता है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स अंडरगोइंग एक्सटिंक्शन? 33%. एनसीईआरटी की लाइन है 33%. यस 33%. राइट एवरीबडी. लेटेस्ट जो लाइन है, लेटेस्ट जो है हाईएस्ट इज 33% जिम्नोस्पर्म्स अंडरगोइंग एक्सटिंक्शन. तो जो क्लास आने वाली है ना आपकी डाइवर्सिटी की, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास एनसीईआरटी मार्किंग में. ट्रेकिड्स, वेसल्स, राइट, पैरेन्काइमा एंड फाइबर सपोर्टिंग होते हैं, और जो वेसल्स होते हैं वो एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं. एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. अंडरस्टूड. ट्रेकिड्स होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स में. सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स आपके जूट और हेम्प में होते हैं. ये डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन से कम 5-5, 6-6 बार आ चुके हैं. फ्लोएम फाइबर्स आर फाउंड इन जूट एंड हेम्प. अंडरस्टूड. चले आगे, चले आगे बेटा. इसको सबको नोट डाउन करो. 20 मिनट्स में मेंटी होने वाला है, बट मेंटी तो यही कराऊंगी ना. बॉटनी वीक मत करो बच्चों. बॉटनी वीक रहेगी तो सीट नहीं आएगी. चलो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रोड्यूस सेल्स दैट डिफरेंशिएट इनटू द सेकेंडरी टिश्यू टाइप. कल आप पूछ रहे थे ना फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म सब करवाने वाली हूं मैं. सो बट बॉटनी इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना बॉटनी के बायो में भी स्कोर नहीं आएगा. So meristems produce cells that differentiate, right? Meristems के जो cells होते हैं वो differentiate करते हैं into 3 secondary tissue types. मेरिस्टेमेटिक से कितने टाइप के टिश्यूज बनते हैं? What are the 3 types of tissues? Dermal, vascular, ground. Such beautiful slides. Meristematic cells are undifferentiated. Undifferentiated. They are going to differentiate. That means become such beautiful slides. Permanent. After becoming permanent, what are they forming? Dermal tissues. Dermal tissues come from vascular tissues, ground tissue, meristematic tissue, all the above. Dermal tissues come from vascular tissue, ground tissue, meristematic tissue, all the above. What is the answer? What is the answer? आप ट्रेन में क्लास देख रहे हो राजकुमार, वेरी गुड. व्हाट इज द आंसर? डर्मल टिश्यूज कहां से आते हैं? वैस्कुलर टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक. इस साल का क्वेश्चन आ सकता है. कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट. The tissue which forms the outer epidermis to protect the root hair. The tissue which forms the epiblema to protect the root hair. The tissue which forms the epidermis below the cuticle to prevent the stem, to prevent the young stem, comes from meristematic, dermal, vascular, ground. Dermal skin. Understood? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. एक एक चीज को समझने की कोशिश करो. Vascular. Companion cells come from meristematic, dermal, vascular, ground. Vascular. Tracheids come from ABCD. Vascular. Understood? Good. Very good. Ground. Your pith, your cortex, your pith, your cortex supports the tissues. Right, everybody? Very good. Good. Very good. So dermal tissue, ऐसा डायग्राम आ गया, ये लिख दिया, ABCD ऑप्शन आ गया. व्हाट इज येलो पार्ट? ग्राउंड टिश्यू. ABCD सेम डायग्राम आ गया. सिंपल डायग्राम, सिंपल डायग्राम आ गया. सेम डायग्राम एग्जाम में आ गया. ABCD कर दिया. इसको क्या करोगे? ये येलो को वैस्कुलर टिश्यू. समझ में आया? डन. दिखने में लगेगा ओ माय गॉड, और जब पढ़ोगे डर्मल, ग्राउंड, वैस्कुलर, सेम फिजिक्स वाली फीलिंग होने लग जाएगी. राइट? पर नहीं करना, मैं हूं ना, बॉटनी हम कर लेंगे मिलके, हम मिलके कर लेंगे. और बहुत आपको पता है ना, आपके लिए कुछ आ रहा है. आपने 12th का, अच्छा 12th का आपने टीजर देखा? 12th का टीजर देखा? 12th का टीजर देखा? सारे का सारा बोर्ड एग्जाम्स 12th का सब कुछ करवा दूंगी. बोर्ड एग्जाम मार्किंग अलग करवा रही हूं, 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रही हूं मैं.
मंडे ऑनवर्ड्स सारे 12th के कॉन्सेप्ट्स सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे की क्लास किसी ने मिस नहीं करनी है। सुबह 6 बजे उठो, पूरे पूरे चैप्टर एक बार में करवा दूंगी मैं, पूरा पूरा चैप्टर 12th का। एक हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरी 12th रिवाइज करवा दूंगी। नीट वाले बच्चों, आपका कितना फायदा होगा सोच लो। हाउ मच बेनिफिट विल यू हैव व्हेन द एंटायर 12th इज डन, राइट? Full chapters I'm going to do of 12th, so you don't have to worry about it at all. Are you worried about your physics and chemistry? Don't worry about your physics and chemistry. Just stay connected to us. Subscribe to our channel. Meristematic cells are small, spherical, polygonal. ये word MCQ statements में आया हुआ है at least 20 times. At least 20 times. Small, spherical, polygonal cells are again ABCD options. Right? This allows for close packing of large number of cells. ये देखो, आपने ह्यूमन बींग्स में देखा है, ह्यूमन बींग्स में स्क्वामोस एपिथेलियम होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। उसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एमसीक्यू में आता है। दैट इज योर स्ट्रक्चरल। यस, अंडरस्टूड। बच्चों एक लाइक कर दो यार, ऐसा क्या बात हो गई कि टीचर को लाइक भी नहीं कर सकते? वैक्यूल्स बहुत स्मॉल हैं या एब्सेंट होते हैं? आपको पता है प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स होते हैं जिनकी कवरिंग टोनोप्लास्ट होती है। ये इतना फास्ट डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, इनमें वैक्यूल नहीं होती है। वैक्यूल्स रिजिडिटी देते हैं सेल को, रिजिडिटी, राइट? बट ये जो सेल है इनमें रिजिडिटी नहीं होती, ये बहुत सॉफ्ट सेल्स होते हैं। और वैक्यूल्स प्रिवेंट करते हैं रैपिड डिविजन, वैक्यूल्स प्रिवेंट करते हैं, रिजिड बनाते हैं सेल को। बट आपके मेरिस्टेमेटिक सेल को तो वेरी रैपिड डिवीजन करना है, वेरी रैपिड डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगे प्लांट में यहां, शूट अपाइकल मेरिस्टम, सैम एंड रूट अपाइकल मेरिस्टम। एंड यू शुड नो दैट सैम इज माय फेवरेट वर्ड। आई वांट टू मेक 5 hearts. Okay, 1 2 3 4 5. Good. डन। चले आगे। लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड अ लार्ज न्यूक्लियस। इतना बड़ा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होती है। इज दैट क्लियर? डन एवरीबॉडी? राइट। लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल ताकि इजीली डिवाइड करे। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म परमानेंट सेल्स। अब परमानेंट सेल्स बनेंगे, इज गोइंग टू फॉर्म परमानेंट सेल्स। एनी डाउट्स? ओ नेहा, डन। अनअकैडमी नीट बहुत अच्छा है मेडिकल एस्पिरेंट। मुझे लगता है आप जो कह रहे हो अनअकैडमी नीट बहुत अच्छा है। वहां पे एक सर है, द क्लासिफिकेशन ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आ जाइए। ये रहा हमारा अपाइकल मेरिस्टम, ये देखिए टिप्स पे। अब अपाइकल रूट की टिप हो सकती है या शूट की टिप हो सकती है। डन। टर्मिनल and axillary buds of shoots and root tip. टिप्स पे बनाता है ऑक्सिन। ऑक्सिन पे एक्सपेरिमेंट किया था FW वेंट ने। किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? एविना सेटाइवा पे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट था, राइट? ये क्या बनाता है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड। ये तीनों के फुल फॉर्म्स एग्जाम में आते हैं, पे अटेंशन कर लो जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू सुभद्रा, थैंक यू। आ जाओ। यस, indole acetic acid, indole butyric acid and naphthalene acetic acid produces tissues that lengthen the tips of the shoots and the roots. तो आपका यहां पे ऑक्सिन। अगर आपको प्लांट ऐसा बनाना है, बुशी, आपको टॉल नहीं बनाना प्लांट ऐसा बनाना है। देखो ऐसा प्लांट टॉल, ये तो टॉल हो गया ना। आपको प्लांट ऐसा बनाना है तो आप टिप को कट करोगे। थैंक यू कमल। आप क्या करोगे? टिप को कट करोगे। You will cut the tip. Is that clear? Come on guys, one like. Lateral, राइट साइड ग्रोथ के लिए। सो प्लांट, अभी इसको मैं एक और वर्ड यहां सबसे पहले वर्ड लिखती हूं। ये प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करता है, डायामीटर बड़ा इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो, राइट? थिकन्स, ये गर्थ, ये वर्ड एमसीक्यू में आया हुआ है कम से कम 20 टाइम्स। ये नेचुरल आया हुआ है एमसीक्यू में कम से कम 20 टाइम्स। ये आया हुआ है अपाइकल मेरिस्टम कट करके बुशी अपीयरेंस।
एविना सेटाइवा आया हुआ है, FW वेंट आया हुआ है, शूट और रूट अपाइकल मेरिस्टम MCQ. एवरी लाइन इज फुल ऑफ MCQ. इज दैट क्लियर? इंटरकैलरी, ये यहां बिटवीन नोड्स ऑफ मेच्योर स्टेम्स इन grasses and other monocots, right? Nodes में होते हैं, nodes में. Is that clear? Removed of regrowth of tissue if tip of stem is removed, right? अगर आप stem का tip remove करते हो, यहां इसको remove कर दिया आपने, तो एक छोटा सा नया निकल के आएगा. देखो आजकल अगर आप पौधे, ये पत्ता था, आपने इसको रिमूव कर दिया, तो ये जब ऐसा नया आएगा, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम. एवरी लाइन इज एन MCQ. मैं सिर्फ ढूंढ ढूंढ के वही चीजें लाई हूं विच इज अ MCQ. रीग्रोथ ऑफ टिप इज अ MCQ. चलो 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 चलो. सो आपको पता है शूट अपाइकल मेरिस्टम, आपको पता चल गया रूट अपाइकल मेरिस्टम, आपको पता चल गया लैटरल मेरिस्टम, आपको पता चल गया इंटरकैलरी मेरिस्टम. यस, अगर कभी भी डायग्राम में आया, ये डायग्राम तो 3-4 बार आ चुका है. दिस डायग्राम हैज कम 3 to 4 times. सेम डायग्राम, NCERT का डायग्राम है ना, सेम थिंग. डन. परफेक्टो जिलेटो विलेटो. यस, चलिए. विच मेरिस्टम डज प्रोड्यूस ग्रोथ इन लेंथ? सारे बच्चे बता देंगे 2 सेकंड में. चलिए चलिए चलिए. परमानेंट टिश्यूज में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग और डेड सेल्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि परमानेंट टिश्यू के आसपास डिपोजिशन है. परमानेंट टिश्यू के आसपास डिपोजिशन है. किसकी डिपोजिशन होती है? स्टार्टिंग फ्रॉम सेलुलोस टू सुबेरिन टू लिग्निन. तो जब इतनी ज्यादा डिपोजिशन हो जाती है आसपास, इट डज नॉट अलाउ फॉर एनीथिंग टू गो इनसाइड और गो आउटसाइड. It does not allow anything to go inside or go outside. Does it allow? Cellulose pectin. So अंदर ऑक्सीजन नहीं आता, वेस्ट मटेरियल बाहर नहीं जाता, तो दिस सेल becomes dead. That's called a dead mechanical tissue. Sclerenchyma. It's called a dead mechanical tissue. This is the reason. Sclerenchyma. Right? Is that clear? Is that clear everybody? Dead mechanical tissue. Right? They have lost the ability to divide. अब यहां पे मुझे आपको एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करवानी है. करवा दूं पहले? इरेज करके करवा दूं? लॉस द एबिलिटी टू डिवाइड पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करानी है. मुझे लगता है मैं प्रिडिक्ट कर रही हूं, कल की क्लास में भी मैंने एक चीज प्रिडिक्ट की थी, जो मैं अभी बोल रही हूं मुझे लग रहा है ये नीट 2020 का क्वेश्चन है या बन सकता है. बाय द वे आपका पेपर लगभग बन चुका होगा. ओके, आपका पेपर लगभग बन चुका होगा. सो प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए. ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल था. मेरिस्टेमेटिक जो मैंने अभी पढ़ाया, इससे बन गया परमानेंट. इस प्रोसेस को मैंने नाम दे दिया डिफरेंशिएशन. परमानेंट से बनेगा, अगर कभी बनना पड़ा तो दोबारा मेरिस्टेमेटिक बन सकता है. इस प्रोसेस को कहते हैं डी डिफरेंशिएशन. बनता नहीं है, बहुत रेयर है, वेरी रेयर डी डिफरेंशिएशन. और मेरिस्टेमेटिक से कभी दोबारा परमानेंट बना, अगर दोबारा कोई और अदर टाइप ऑफ परमानेंट बना, उसको कहेंगे रीडिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन से 100% MCQ आने का चांस है. 100%. 100%. सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिनमें सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल है. वन टाइप ऑफ सेल. कॉलेनकाइमा आपका लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है. स्क्लेरेनकाइमा आपका डेड मैकेनिकल टिश्यू है, बिकॉज इसके अंदर लिग्निन और सुबेरिन डिपॉजिटेड है. Is that clear everybody? Are you understanding? Parenchyma has chloroplast. Can you see them? So many green cells which are going to do photosynthesis. Parenchyma के अंदर अगर एयर डिपॉजिट हो गई, एयर, लोटस देखा है आपने? I'm going to call it Aerenchyma. Aerenchyma. अच्छा मुझे बताओ, हैव यू एवर हैड लोटस स्टेम? लोटस स्टेम का पिकल भी बनता है, लोटस स्टेम की सब्जी भी बनती है. इन नॉर्थ इंडिया वी कॉल इट कमल ककड़ी. हैव यू एवर हैड लोटस स्टेम? हैव योर पेरेंट्स कुक्ड लोटस स्टेम फॉर यू?
right? So if you ever cut a lotus stem, next time you see, you will have like this, a lotus stem, the one which we make pickle, it looks like this. Have you had it? So these are the air spaces. It's a modification of parenchyma. Question can come. Parenchyma किसकी modification है? Parenchyma, collenchyma, sclerenchyma, complex tissue. This question can come in your MCQs. This question can come in your MCQs. Is it, Rajendra? Same here. Right? Is that clear? Understood? Parenchyma. Understood? Air spaces are there. Okay? Right? अगर parenchyma green color का हो जाए, green color का, like this, और photosynthesis करे, chlorenchyma, chlorenchyma. Is that clear? Fibers, sclerids, we are going to be doing that in detail. Xylem is made up of xylem vessels, end to end, and phloem is made up of companion cells in phloem tubes. Is that clear? Perfect. I'm going to delete it. Can you click a snapshot? Can you click a snapshot? Please. Can you click a snapshot? Perfect. Villetto. चलिए राइट चलो 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 परमानेंट टिश्यूज कितने अच्छे से बनाया हुआ है मैंने सबको चलो 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 पैरेन्काइमा कितने अच्छे से बनाया अबंडेंट एमसीक्यू थिन वॉल्स एमसीक्यू अनस्पेशलाइज्ड कैन डिवाइड एट मैच्योरिटी एमसीक्यू राइट अलाइव यस नॉन वुडी ग्रीन कलर के होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं गैस एक्सचेंज करते हैं सिक्रीशन करते हैं वुंड रिपेयर करते हैं स्टोरेज करते हैं एनी डाउट्स बहुत ज्यादा सिंपल है स्वयं मालविया गुड बेटा गुड यस कॉलेनकाइमा इलोंगेटेड सेल्स अनइवनली थिकन बताऊं जैसे मान लो ये सेल है तो बीच बीच में जो जगह होगी ना थोड़ी सी उप्स 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 यस तो ये मान लो ये सेल है और ये सेल तो बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है ना ये देखो ये बीच बीच में थोड़ी थोड़ी जगह इन जगहों पे कॉर्नर्स पे इसीलिए अनइवन थिकेंड इज अ एमसीक्यू कॉर्नर्स पे डन माइक्रो कोर्स कैसे लेते हो बेटा वीडी माइक्रो वीडी एमआईसी कोड है ना कुछ बच्चे इकोलॉजी का डिमांड कर रहे थे जैसे तो बड़े बहुत अच्छा होता है माइक्रो कोर्स क्योंकि हम सब बैठते हैं 1-1.5 घंटा बैठते हैं एमसीक्यूज पूरे लाइन से सॉल्व करते हैं और बड़ा ही मजेदार होता है कई बच्चों ने तो माइक्रो कोर्स 1 रुपी 5 रुपी 11 रुपीज में खरीदा हुआ है बहुत बहुत अच्छा होता है माइक्रो कोर्स रियली राइट इलास्टिक सपोर्ट दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू आपने देखा कई बार प्लांट झूलता है हवा चल रही है प्लांट ऐसे ऐसे कर रहा है यस और नो मेरी बातें मत मानो कुछ बच्चों ने जिन्होंने खरीदा हुआ है ना उनसे पूछ के देख लो माइक्रो कोर्स कैसा होता है राइट देखो कुछ कुछ ऐसा ऐसा करता है झूलता है दैट्स बिकॉज ऑफ ब्रेक नहीं होता इलास्टिसिटी डन आ जाओ स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स एंड स्टोन सेल लॉन्ग स्लेंडर सेल्स सेकेंडरी सेल वॉल्स जो बाद में बनी है लिग्निन नॉट इलोंगेटेड बट लिग्निन अगेन डेड इनइलास्टिक अंडरस्टूड वुडी इनइलास्टिक एंड वुडी अनिकेत ये एक बार खत्म कर ले फिर मेंटी करते हैं यस चले सो ये रहे आपके ब्रैकीस्क्लेरिड्स ब्रैकी देखो कोई शेप नहीं है कोई टेढ़ी मेढ़ी शेप नहीं है देखो लगभग आइसोडायमेट्रिक है इज दैट क्लियर मैक्रो बहुत बड़े बड़े सेल्स बिग सेल्स ट्राइको हेयर लाइक सी ट्राइकोम इज हेयर इसलिए ट्राइचुप करके एक तेल आता है फॉर हेयर ऑस्टियो बोन शेप्ड स्क्लेरिड्स एस्ट्रो स्टार शेप्ड sclerids and tricho is hair shaped long elongated any doubts these are the type of stone cells मुस्कान थोड़ा सा थ्योरी करना जरूरी है ना थ्योरी के बाद ही तो मेंटी सॉल्व होगा अभी करा रही हूं मेंटी डोंट वरी 5 मिनट और मेंटी करा रहे हैं
A plant tissue when stained showed the presence of hemicellulose pectin in cell wall of its cells. Name the tissue. Lignin नहीं लिखा है. Yes राजेश. Lignin नहीं लिखा है. क्या आंसर है? All the best अंजलि बेटा. All the best. Collenchyma. Specialized kinds of parenchyma के नाम बताइए. Erenchyma, chlorenchyma. Yes, और ये रहा माइक्रोकोर्सेस, राइट. इसका लिंक मैं डलवा दूंगी आपको. तो जिस भी टॉपिक में माइक्रो कोई प्रॉब्लम है, यू कैन बाय. आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू लाइव माइक्रो कोर्सेज में. इज दैट क्लियर? डन. चलो, राइट. और ये क्रैश कोर्स है 11th का उन बच्चों के लिए जिन्होंने 11th में कुछ नहीं पढ़ा है और जिनको एक्स्ट्रा हेल्प की जरूरत है. तो आप सिर्फ 11th का नीट क्रैश कोर्स भी ले सकते हो. अगर आपको सिर्फ 11th के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे से सिर्फ और सिर्फ 11th के टॉपिक्स में, हम 12th मैनेज कर लेंगे. 11th के टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है vdnt.in/11neetcc और मेरा कोड हमेशा सेम रहता है vdneet और सिर्फ 33,025 का क्रैश कोर्स है. क्या स्लाइड है, क्या स्लाइड है. एरेनकाइमा आपको फ्लोट कराने में मदद करती है. क्लोरेनकाइमा ग्रीन कलर की होती है. क्या स्लाइड है. करवा दो, करवा दो. बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट्स हैं बेटा. सेकेंडरी ग्रोथ भी करवाऊंगी विधि. सब कुछ एक में पता चलेगा. जाइलम एंड फ्लोएम. चले आगे. क्रैश कोर्स में बेटा फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है. फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, दोनों चीजें क्रैश कोर्स में. डन. मैं आपको बायो पढ़ाऊंगी. डन. अगर आप वीडी नीट का कोड यूज करेंगे तो वानी मैम ही आपको पढ़ाएंगी, राइट. तो अगर वानी मैम से पढ़ना है तो वानी मैम का कोड लगाना है. वानी मैम का कोड लगाओगे तो आई एम गोइंग टू बी टीचिंग यू. और फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग टीचर्स होंगे. डन. चले आ जाइए, आ जाइए. ओ आ जाइए. प्रोटो मेटा भी लिखा है मैंने, देखो सब कुछ लिखा हुआ है. अमेजिंग स्लाइड है ना. ओ ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. मुझे लग रहा है मेरी स्क्रीन कह रही है सुबह 5 बजे मुझे ऑन कर देते हो, रात के 12 बजे तक मेरे से काम कराते हो. यस, मैं नहीं करूंगी काम. आई थिंक यही गड़बड़ है. चलिए आइए. जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. तो मैं भी इसको रोज बोलती हूँ कुछ नहीं होता, 3 मई तक काम कर लो, फिर हम दोनों थोड़ी छुट्टी पे चलेंगे. पर 3 मई तक तो हमें काम करना ही पड़ेगा. तो मैं इसको बोलती हूँ कुछ नहीं होता, मेरा भी तो गला खराब है. 10 दिन से गला ठीक ही नहीं हो रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ. पर 10 दिन से मैं रेगुलर क्लास. इधर देखा, इधर दिख रहा है आपको स्वेलिंग. सो कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स. गाइस यार आप लोगों ने लाइक ही नहीं किया है, क्या फायदा हुआ. मतलब मैम नहीं बोलेगी लाइक तो नहीं करना, बस आना है और बैठना है, अच्छे लेक्चर सुनने हैं और चले जाना है, राइट. मैम बोलेगी बार बार लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, फिर ही लाइक करेंगे हम, अदरवाइज हम लाइक नहीं करते. यस. आज से क्लास मॉनिटर कौन बनेगा? लाइक मॉनिटर. गाइस एक लाइक यार, 1000 लाइक्स तक तो पहुंचाना ही है ना. आओ. सो जाइलम इज गोना कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम एंड लीव्स, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. It will not allow the plant to break down. It's going to provide mechanical support. Consist of tracheids. Tracheids ऐसे होते हैं बेटा, मैं यहां से डायग्राम डिलीट कर दूंगी तो प्लीज ध्यान से देखो. Tracheids ऐसे होते हैं. क्या आपको दिख रहा है? एक ट्रेकेट दूसरे ट्रेकेट पे सिर्फ इस एंड पे लगा हुआ है और इस एंड में एक पिट होगा. पिट 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 के आसपास लिग्निन होता है. ध्यान से सुनो, ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा. पिट के आसपास लिग्निन होता है. देखो ये और वाटर इससे ट्रांसफर